آج ہم کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں یہ واقعہ پیش آیا اور وہاں پہ غیر ملکی شہری پریانتھا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس موقع پہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی گئی اور مظاہرین نے روڈ بھی بلاک کر دی۔ آپ لوگ کل سے اس انسیڈنٹ کو کور کر رہے ہیں اور میں نے میڈیا کو دیکھا اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا نے بڑی فیکچول رپورٹنگ کی ہے اور آپ لوگوں نے بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے اس کے بارے میں رپورٹ کیا ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی ہے۔ جیسے یہ واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے کہ لوگوں میں ایک اضطراب پھیلا اور کافی بے چینی پائی جاتی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس کا خود نوٹس لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری تشکیل دی اور اس کا اعلان کیا، جو اپنا کام اس وقت بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں خود اس کیس کی مانیٹرنگ براہ راست کر رہے ہیں اور پنجاب پولیس کے جو سینئر افسران تھے وہ موقع پہ موجود تھے۔ آئی جی صاحب نے ادھر ایک مانیٹرنگ سیل بنایا تھا اور وہ خود اس کی نگرانی بھی کر رہے تھے اور سب سے رابطے میں تھے۔ اور ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالا اور کمشنر گجرانوالا جو ہیں وہ کل سے سیالکوٹ میں ہیں اور اس موقع کی اس حادثے کی جرم کی تفتیش بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں آپ کو آج کل سے آج تک کی اپڈیٹ دینا چاہ رہا تھا۔ اس میں کل شام پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو گیا، جو نہ صرف تعزیرات پاکستان کی دفعات کے زیر تحت تھی بلکہ اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ اس کی پروویژنز کے تحت بھی یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ اور کل سے آج تک ابھی 24 گھنٹے کے اندر 200 ریڈز ہو چکی ہیں اور ڈی پی او سیالکوٹ نے 10 ٹیمیں تشکیل دیں جنہوں نے چھاپے مارے اور 200 ریڈز ہو چکی ہیں۔ 118 لوگوں کو ابھی تک زیر حراست دیا جا چکا ہے اور اس کے جو 13 مین اس کے مرکزی کردار ہیں، جو مرکزی ملزمان ہیں، ان کو بھی پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو ریٹریو کیا جا رہا ہے۔ یہ 160 کیمروں سے یہ فوٹیج لی گئی جو 12 گھنٹے کی فوٹیج تھی اور پولیس نے اس کو بھی دیکھا ہے اور اس کی مدد بھی لی ہے ان ملزمان کی شناخت میں اور ان کی گرفتاری میں۔ اس کے علاوہ سی ڈی آر اور موبائل ڈیٹا انالیسس جو تھا وہ بھی کیا اور ہزاروں کالوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا اور اس کی مدد سے بھی یہ شناخت کی گئی کہ یہ ملزمان کہاں ہیں اور اس نے بھی تفتیش میں کافی مدد دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو فوٹیج کا جو ڈیٹیل انالیسس ہے وہ اور جو فورینزک انالیسس ہے وہ ابھی جاری ہے اور وہ کافی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے کافی خاطر خواہ اس کے اندر پروگریس ہے اور یہ تفتیش ابھی بھی جاری ہے۔ جو پریانتھا کی ڈیڈ باڈی تھی اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور اب وہ منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فارن افیئرس کے ذریعے جو سری لنکن ایمبیسی ہے اس کو یہ دے دی جائے گی۔ اس موقع پہ میں آپ کو پھر یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کیس کو اوپر سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ خود مانیٹر کر رہے ہیں اور کسی شخص کے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے وہ بھی آئی ڈی صاحب کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے، لیکن اس انکوائری کے اندر بھی ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ لیکن اگر ہمیں پتہ چلا کہ کسی قسم کا کوئی ڈیلے، کوئی غفلت کسی سرکاری اہلکار کی طرف سے کوئی بھی اگر غلطی ہے اس کا ہے، اس میں ہم باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ہم یہ دکھائیں گے پوری قوم کو کہ جی اس کو ہم نے ایک ایگزامپل کیس بنانا ہے کہ تاکہ اس طرح کا افسوسناک واقعہ کبھی دوبارہ ہمارے معاشرے میں پیش نہ آئے۔ میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس واقعے کی مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حسان صاحب نے آپ سے شیئر تو کر دی ڈیٹیلز۔ جی حسان صاحب نے آپ سے یہ ڈیٹیل تو شیئر کرنی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایڈ کروں گا کہ یہ جو کل افسوسناک واقعہ ہوا اس میں ابھی تک جو انفارمیشن پولیس کو ملی ہیں، یہ کوئی بھی پہلو رہ نہ جائے جس کو ہم ایڈریس نہ کر سکیں اور اس کی بہت پروفیشنل طریقے سے تفتیش جاری ہے۔ اس کو ازداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ ہو چکا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کوئی خامی نہ ہو تاکہ ملزمان کو کوئی بینیفٹ مل سکے اور اس کا جلد از جلد تفتیش مکمل کرنے کے بعد اس کا چالان سبمٹ کریں گے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں تاکہ اس کا جلد ٹرائل شروع ہو اور جو ملزمان ہیں وہ کیفر اقتدار تک پہنچے۔
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बारी बारी। जी, मैं इसमें जब फर्स्ट रिस्पॉन्ड हुआ तो उनको ये तो नहीं पता था कि इसकी सिवियरिटी क्या है, इशू क्या है। तो जो भी उधर उनको भी थाना मौजूद था, उधर से जब जाएं तो 15-20 मिनट का फासला उसमें लग जाता है। थाने में जितने एहलकार मौजूद थे वो फौरी तौर पर पहुँच गए। उन्होंने फिर मज़ीद अपने अफसरान को बताया कि सिचुएशन क्या है। तो मज़ीद नफरी फिर DPO साहब खुद रवाना हुए और SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट भी रवाना हुए, और फिर जो जिस चीज़ को इतला मिलती गई वो उधर पहुँच गए। इसमें अभी तक जो हमने देखा है कोई किसी किस्म की कोताही नज़र नहीं आई पुलिस के रिस्पांस की तरफ से। और फिर चूँकि आपको पता वो रोड ब्लॉक थी और DPO साहब खुद भी जब गए तो 15-20 मिनट पैदल चल के गए, तो इसमें कोई कोताही अभी तक पुलिस की हमारे सामने नहीं आई। लेकिन जैसे कि एक चीज जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 9:10 पे झगड़े का आगाज 10:02 10:02 जी जी और 11:05 पे हलाकत हुई। 2 घंटे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का मार्जिन बीच में है जब पुलिस को इत्तला मिली और पहुंची। 2 घंटे पुलिस कहाँ थी, स्पेशल ब्रांच कहाँ थी, IB कहाँ थी? आप खुद IB में काम कर चुके। एक चीज का हुकूमत दावा करती है कि हमारा कंट्रोल है। 2 घंटे तक तमाशा बना रहा, गैर मुल्की का कत्ल कर दिया गया। कहाँ थी पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत? इसमें सर साथ टाइम ऐड करेंगे कि जो भी गैर मुल्की शहरी होते हैं उनकी ये भी एक गैर मुल्की शहरी था, इसकी सिक्योरिटी के लिए भी क्या स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की टीम थी या नहीं थी, उनकी जाने से बताया एक ज़रा जी मेरी एक तो दरख्वास्त ये है कि टाइमिंग और ड्यूरेशन ज़रा क्लियर कर लें, क्योंकि जाहिर है कि ये फैक्ट्स हैं, इसकी रिपोर्टिंग बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। 10:02 पे ID साहब ने बताया है कि इस मसले का आगाज़ हुआ था और 1 घंटे बाद, करीबन 1 घंटे बाद मैं आपको फैक्ट नहीं अंदर ही हुआ है जी मैं आपको सारी बात बता देता हूँ, आप ये ताकि सुन लें। एक ही फैक्ट्स हैं। 10:02 के ऊपर ये मसला शुरू है जो अभी तक की तफ्तीश से पता चला है। 11:कुछ पे उसको हलाक कर दिया गया था। उसको हलाक करने के बाद ये कॉल पुलिस को गई है 11:28 पे। करीबन 16-17 मिनट अभी तक जो हमारी तफ्तीश बताती है, 16-17 मिनट के बाद पुलिस का जो पहला रिस्पांस था वो वहाँ पे पहुँच गया था, जिसमें SHO और उनके साथ कुछ नफरी थी। उस वक्त वहाँ पे 800 से 900 अफराद थे जो उसकी नाश को घसीट रहे थे। उसमें कुछ लोग डंडा बरदार भी थे। उन्होंने उनको रिपोर्टेडली वहाँ रोकने की कोशिश की है और मज़ीद नफरी की रिक्वेस्ट की है, और वो फिर उसके बाद आई है। और उसके बाद 6-7 मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर जो पुलिस की इमदाद है वहाँ पे पहुँची है। लेकिन अभी तक की तफ्तीश से बताती है कि पुलिस को जब पहली इतला गई है उस वक्त तक उस बंदे को हलाक किया जा चुका था। ये आपकी बात सही है कि फैक्ट्री में उससे पहले किधर थी? आपकी जो इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह आप सरदार साहब ने IB में बहुत काम किया, वहाँ पे तो अच्छा खासा मूवमेंट को पता लग जाता है। और IB साहब ने वायदे में गारंटी दी है कि जो गैर मुल्की सिक्योरिटी की रिपोर्ट मांगी सिक्योरिटी गार्ड की, तो वो कहाँ स्टेटस है, क्या कर करते हैं? और 1 घंटा 36 मिनट के बाद जो सवाल पैदा हुआ था, सीधा सवाल था कि पुलिस ने पहले आके मुज़ाकरात करके सड़क खुलवाई थी। 1 घंटा 26 मिनट मेन GT रोड पे तमाशा लगा हुआ है, एक आदमी को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो मुल्की है या गैर मुल्की। दूसरी बात, पुलिस रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। वहाँ पे खड़ी है, नजर आ रहा है जी 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 आगे नहीं जा रहे वो आगे नहीं जा रहे जी 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 आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। आपने जो कुछ किया ये बिल्कुल जो पूछा बिल्कुल सही है, तो आपका पूछना पड़ता है। हम इट इज़ टू अर्ली टू से कि क्या हो, हम इसका सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे कि ये कम्युनिटी वैसे तो वो क्योंकि फैक्ट्री के अंदर सारा इंसिडेंट हुआ, उसके अंदर पुलिस की मौजूदगी फैक्ट्री के अंदर नहीं होती और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मौजूदगी भी नहीं होती। तो लेकिन इसमें अगर कोई है किसी लैब किसी भी तरफ से, उसका हम जायज़ा लेंगे इंशाल्लाह और उसको कोशिश करेंगे कि आइंदा इस किस्म का ना हो। लेकिन अभी तक जो हुआ है हमें वो ये सारा कुछ फैक्ट्री के अंदर हुआ। थैंक यू।
स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से काइंडली बता दीजिएगा कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की टीम इसके साथ मौजूद थी नहीं थी, क्या इसे असाइन की गई थी नहीं? ये सर ये बता दें कि सियालकोट में ये पहला वाकया है, 2 भाई भी जलाए गए थे तशद्दुद करके, वो भी आपको याद होगा। फिरोजपुर रोड पे भी ये वाकया देखने में आया था, 2 लोगों को जो है वो आग लगा दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि उसमें किसी बंदे को सजा नहीं हुई तो लोग मजीद जो है ये काम जो है वो? अच्छा सर, इसमें इस तरह के 118 आपने लोगों को पकड़े हैं राव साहब, ये जो 118 लोग पकड़े हैं, बात ये तो सारे तो कातिल नहीं है। कातिल कितने ये कितना डिटरमिन होगा, और खास तौर पर जो आपने 13 लोग पकड़े हैं, फुटेज में जो लोग नजर आ गए, इसको किस तरह आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे? सारे बंदे 800-900 बंदों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया है, सारे तो कातिल नहीं है, इसको किस तरह शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा? असल कातिलों को किस तरह? जी, मैं आपको दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। अहमद ने जो पूछा कि हम किस तरह डिटरमिन करेंगे, देखिए इन्वेस्टिगेशन काम ही इस चीज़ का है कि हम डिटरमिन करेंगे किसका क्या रोल था। उसमें जो कैमरे जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है उसको एनालिसिस करेंगे, और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसमें हर बंदे का रोल वो डिटरमिन करेंगे कि इन्होंने क्या किया। बिल्कुल आपकी बात ये तो नहीं है कि सारे बंदे कातिल तो नहीं है, जिसमें जो रोल जिसका होगा उसी को उसी तरह डिटरमिन किया जाएगा। आपने बात की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट वाकई फॉरेनर्स की सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन ये फॉरेनर जो कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, उधर अंदर तो इनकी मौजूदगी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की नहीं होती। ये आमतौर पे जब सफ़र करते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं तो उनको हमने बताया हुआ है कि ये हमें बताएं ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। थैंक यू। अच्छा नहीं, देखिए अभी ये इस वक्त हम फाइनल रिपोर्ट भी आपके पास पेश कर रहे हैं। हमने जो कुछ किया है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जी मज़ीद क्या गिरफ्तारियां हो रही हैं? हाँ जी, अब आपको बताएं जब मुकम्मल होगी तफ्तीश तो जो जो रोल जिसका होगा उसके मुताबिक बिल्कुल कार्रवाई होगी। मज़ीद गिरफ्तारियां हो रही हैं? क्या लोग कुछ रहते हैं, कुछ मुलज़मान रहते हैं, क्या छापे जारी हैं? नहीं, ये आन को 160 फुटेज का आपने जिक्र किया, तो 160 फुटेज में अभी और बहुत लोग सामने आएंगे, क्या मज़ीद गिरफ्तारियां होंगी? जी बिल्कुल, ये आन कोई इन्वेस्टिगेशन है, इसमें बिल्कुल अब जो जिसका रोल पाया गया उसको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। ये करना पड़ा तो आपने इन्वेस्टिगेशन की है, जो इत्तलात आ रही है प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट की कि शायद उन्होंने कहा था बगैर उनकी शख्सियत में आना है, इसको सफाई किया जाए। इनिशियल कॉल क्या था, इब्तिदा क्या बनी सर, आपने तहकीकात तो की है, जरा बताइए। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ स्टिकर है जिसको उन्होंने बढ़ाने का कहा था, मशीन को जी देखिए, मैं बेसिकली जो अभी तक की बात है वो इनिशियल रिपोर्ट यही है कि वहाँ पे मौके पे कोई चीज़ रिमूव की गई थी जिसकी वजह से लोग मुश्किल हो गए थे। वो क्या चीज़ थी, उसमें कितनी हकीकत है, वो जाहिर है कि उसी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है। इसके ऊपर अभी कोई हाफ वेक बात करना ज़रा गैर ज़िम्मेदाराना बयान होगा। आज का मकसद ये था कि आपको बताएं कि पुलिस और इंतजामिया पूरी तनदेही से इस केस पे काम कर रही है। तमाम फैक्ट जो अभी तक के हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। आपने ये बात बिल्कुल सही की, आई साहब ने बताया कि 13 जो मरकज़ी मुलज़मान हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, वो अभी सारे ज़ेर हिरासत है। अगर तफ्तीश में निकलता है कि मज़ीद लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ने की ज़रूरत है, उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन हमारा फोकस इस बात पे है कि इसको हम टेस्ट केस बनाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी है, हमारे लिए भी शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क में ऐसा वाक़या हुआ है। और हम ये फैक्ट्स आपके सामने साथ साथ लाते रहेंगे। जजेस सामने आ गए, नहीं जी, यहाँ पे उसकी फैमिली यहाँ पे नहीं थी जी, उसका ख़ानदान जो था वो अपने वहीं पे था रिपोर्टेडली, वो इधर नहीं।